ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ساتھ والے کو بات بعد میں پتہ چلتی ہے اور پوری دنیا تک پہلے پہنچ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے ہر کوئی چوک میں بیٹھا ہے. ہر کسی کا جی چاہتا ہے میں اٹھوں سارے جہان کو پتہ چل جائے، میں کھاؤں سارے جہان کو پتہ چل جائے، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی جان لے. ایسے میں جب ہم ریاکاری کی بات کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس دنیا میں ریاکاری کی بات کون سمجھے گا، کیونکہ ہر ایک نے ریائی تو سیکھی ہے، دکھاوائی تو سیکھا ہے. یہاں تو ہر عمل لوگوں کے لیے تو کیا جاتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللہ کی طرف سے آغاز کرتے ہیں. پہلا رکوع ہے جس میں کے جوابات دیے گئے. 4 بنیادی باتیں اس رکوع میں ڈسکس کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز نیکی کے بارے میں ہے. نیکی کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار کیا ہے؟ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں حکم دیا کہ محبوب ترین چیز جو آپ کی سب سے فیورٹ ہے، جس پر آپ کی جان جاتی ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو دو گے، خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی خبر لوگوں کو دو. لوگ آپ کی محبت کا، اخلاص کا اور آپ کے جذبوں کا کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ اگر وقتی طور پر کوئی آپ کی تعریف بھی کر دے اور اس کا انسان کو کیا نفع پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل پسند چیز خرچ کرنا یہ نیکی، محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کر کے اپنی ضرورت کے دل میں یہ شوق تھا کسی طرح نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے انصار میں کھجور کے باغات کی وجہ سے بہت مشہور تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے. انہیں اپنے باغات میں سے بیروہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا. یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. سیدنا انس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما نیک تک نہیں پہنچ سکتے. بڑی مثال ہے اور بہت بڑا سبق ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ نبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नेकी के आला मायार तक पहुंचने के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजरों में आला मकाम पाने का किस कदर शौक रखते थे। या अल्लाह हमें भी ऐसा शौक नसीब फरमा दे। आज आपने जरूर सोचना है कि मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है। अगर आप नेकी के आला मकाम जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं और स्टैंडर्ड की नेकियां करना चाहते हैं, तो जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में कुर्बान कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दे दे। क्या आप नहीं जानते, हमने देखा कि एक दाने से कैसे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने कौन पैदा करता है? कौन एक की जगह 700 टाइम्स बदला देता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तिजारत कर लें, इससे ज्यादा नफा बख्श कोई चीज नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने उस मौके पर कहा कि मुझे मेरी लौंडी मिर्जाना बहुत मरगूब है, मैं उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आजाद करता हूं। यानी हर एक ने ये देखा, क्योंकि वो हर आयत पर अमल करना चाहते थे, हर एक ने ये देखा वो क्या चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसे मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दे दूं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको पूरी तरह जानने वाला है। यानी किस नियत से किसी ने खर्च किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियत के मुताबिक पूरी पूरी जजा देता है। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे, इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती, आप कह दें तौरात लाओ, फिर तुम उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। यहूदियों का एतराज था, अगर मुसलमान मिल्लत इब्राहिमी पर है तो ऊंट का गोश्त क्यों खाते हैं, उसका दूध क्यों पीते हैं? जवाब दिया गया, खाने पीने की अशिया जो उम्मत मुस्लिमा के लिए हलाल की गई है, बनी इसराइल के लिए भी वही हलाल थी। और तौरात नाजिल होने से पहले सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी अपनी बीमारी की वजह से। उन्होंने, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत पर हराम नहीं की थी। सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि यहूदियों ने यह सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, और यहूदियों ने यह सवाल किया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए किस चीज को हराम किया था। तो आपने फरमाया कि वो बादिया में रहते थे, उन्हें इरकुन निसा की बीमारी हो गई, उन्हें बतौर इलाज यही समझ आया कि ऊंट का गोश्त और दूध छोड़ दिया जाए, चुनांचे उन्होंने उसे अपने ऊपर हराम बना लिया। यहूदियों ने कहा, आपने सच कहा। और मुस्नद अहमद की रिवायत से पता चलता है कि उन्होंने दोनों चीजों को बतौर नजर अपने ऊपर हराम कर लिया था कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर मैं इन्हें छोड़ता हूं। फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, तो वही लोग जालिम हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक आदमी अल्लाह ताला की किताब की रोशनी में फैसला करने की दावत दिया जाए और वो तकब्बुर और सरकशी करते हुए उसका इनकार करे और अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। कुल सदक़ल्लाह, आप कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सच फरमाया है। चुनांचे इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो यकसू था और मुशरिकों में से न था। यहां यह देखने की जरूरत है कि मिल्लत इब्राहिम से क्या मुराद है। इससे मुराद जिंदगी के वो तौर तरीके हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदगी में इख्तियार किए, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, उसके लिए यकसू होना, यूनी डायरेक्शनल थे। ऐसा नहीं था कि कभी इधर कभी इस तरफ, कभी आगे कभी पीछे, यानी चारों ओर नहीं देखते थे, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर फोकस थे और उसके लिए हर दम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहना, यह मिल्लत इब्राहिमी है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, आप कह दे मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखाई है, दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, वो एक मजबूत दीन है, मिल्लत इब्राहिम है जो एक ही तरफ के थे, मुशरिकों में से न थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हर मामले में रुख अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जानिब रहता था। जब इराक के बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का हुक्म दिया,
उस वक्त जब उसने कहा कि ऊंचे पहाड़ों की तरह आग के अलाव जलाए गए थे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, कैसे वो फोकस्ड हुए, यूनी डायरेक्शनल थे, नो एंग्जाइटी, कोई फियर नहीं, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, काफी है हमें अल्लाह ताला और वो सबसे बड़ा कारसाज है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो कुर्बानियां देता है, अल्लाह ताला उसके लिए किस कदर मेहरबान हो जाता है। कुर्बानी देने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशिया का मिजाज ही बदल डालता है। आग जलाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक बना दिया, तस्कीन का सबब बना दिया। इस वाक़े के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से निकले और फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जाता हूं, वो मेरी रहनुमाई करेगा। और जिस वक्त ख्वाब में अपने बेटे को देखा कि मैं उसे ज़िब्हा कर रहा हूं, तो समझ गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटे की कुर्बानी चाहते हैं, तो बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो कुछ चाहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में वही किया। 30 बड़ी बड़ी कुर्बानियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी जब उन्हें आजमाया गया। हमसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतालबा किया है कि हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, उनका तरीका इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इरादा जरूर कर लीजिए, इरादों के साथ दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक का सबब बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीनन ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घरों को हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा घर जमीन पर बना था? रुए जमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहला घर बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, तमाम जहानों के लिए बाबरकत और हिदायत है। यहूदियों के पहले एतराज का जवाब देने के बाद दूसरे एतराज पर बात है। आयत नंबर 93 से 96 में उम्मत मुस्लिमा का किबला क्यों तब्दील किया गया, जबकि बैतुल मक़दस तो अंबिया का किबला रहा है? जवाब दिया गया, बैतुल्लाह जमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहला घर था जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था। यूं लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दिया गया, वो शुबहात जो जहनों के अंदर डाले गए, जो आज भी एथियस्ट जहनों के अंदर जहर की तरह बोते चले जा रहे हैं। आगे हज का हुक्म है, इसमें वाज़ेह निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो उसकी तरफ रास्ते की इस्तेताअत रखता हो, और जिसने कुफ्र किया तो यकीनन अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। वमन दखलहु काना आमिनन, कितनी बड़ी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर की। आज पूरी दुनिया को अमन चाहिए, अमन कहीं से मिलता नहीं। अमन का एक खित्ता है, टेंशन फ्री जोन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस दिन से ऐलान कर रखा है, आज तक वो बात बरकरार है। जो उसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। जो उसमें दाखिल होता है किस तरह से अमन का लिबास पहनता है, किस तरह अमन के काम सीखता है। हालत एहराम की पाबंदियां अमन ही के लिए तो है, और उस खित्ते में कोई अपने बाप के कातिल को भी देखे, हालत एहराम में भी हो या हालत एहराम में ना हो, उसको भी कत्ल नहीं कर सकता। हरम मकाम अमन है, और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जो उसकी तरफ रास्ते की इस्तेताअत रखता हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया, तुम हज करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 3257 नंबर पर। वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जिसने कुफ्र किया तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से
بے نیاز ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے حج کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے, یہ ہماری ضرورت ہے. یہ فقط انسانوں کے لیے ہے, انسانوں کی ریلیجیوسٹی کے لیے, اسپرچولیٹی کے لیے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی کے لیے ہے. یہاں کفر کرنے سے مراد حج نہ کرنا ہے. قرآن مجید نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ پہلے میں اپنے بچے پال لوں, پہلے میں بچوں کی شادیاں کر لوں, پہلے میں فلاں کام کر لوں. کوئی کام ارکان سے پہلے نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس حکم کو پورا کرنا فرض ہے. اور اگر کوئی حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کے باقی نیک اعمال قبول کر لیے جائیں گے؟ جس نے بنیادی احکامات پورے نہیں کیے. سیدنا عمر نے فرمایا جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے, کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو, حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر گواہ ہے, اس لیے کفر کرنے سے بچ جاؤ. آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا ہے, تم اس راہ میں کجی چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہودیوں کی روش پر تنقید ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو. تو یاد رکھو تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اس لیے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. ان اعمال کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ سمجھتے ہو. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف رب العزت نے توجہ دلائی ہے. اور آگے کی آیت میں رب العزت توجہ دلا رہے ہیں یہودیوں کی اطاعت کرو گے, ان کے طور طریقوں پر چلو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے. اس آیت کے دو مطلب ہیں, دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے, اور دوسرے یہ کہ تمہیں آپس کی لڑائی میں مبتلا کر کے کافر بنا دیں گے. مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لو, تمہاری جانیں, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی, اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے. سن لو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا. کفر کرنے اور ایمان سے دور ہونے کی صورتوں میں دین کے اجزاء کو بدلنا اور دین میں اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر پیش کرنا. مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے رب العزت نے, اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں کافر بنا دیں گے, اور تمہارا کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی رہ گیا جبکہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. یہ تھا پہلا رکوع, اور اس میں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا اور کچھ سے روکا گیا. 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا, اپنی عزیز چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, سچ بولنا, شرک نہ کرنا, صراط مستقیم پر چلنا, اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا, اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامنا. اور جن باتوں سے روکا گیا یہ 8 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا,
जुल्म करना, शिर्क करना, कुफ्र करना, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, इंसानों को टेढ़े रास्ते पर चलाना, अहले किताब की इताअत करना, ईमान से कुफ्र की तरफ फिर जाना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। नेकी का आला दर्जा पाने की कोशिश करनी है। क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? जवाब अपने रब को दीजिएगा। क्या आप अल्लाह सुब्हान व तआला के हुजूर अपनी कीमती मता कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या नेकी के आला मकाम तक पहुंचना चाहते हैं? तो अपने रब से बात कीजिए। ये बंदे और रब का मामला है, ये दूसरे इंसानों का मामला नहीं है। लेकिन हम सब ने इसके लिए इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी है। रुकू नंबर 2 है, इस्लाह के लिए इस्लामी इज्तिमाइयत नागजीर है। और मेन पॉइंट्स है इसके, इस्लामी इज्तिमाइयत की बुनियादें, इस्लामी इज्तिमाइयत का क़याम और क़यामत के रोज। पहली आयत है अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीचेस के आगाज में इस आयत को जरूर रखा करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। इस्लामी इज्तिमाइयत की 2 बुनियादें हैं, तकवा और उखुवत। और जहां तक तकवा का ताल्लुक है, जिस काम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है उससे सवाब की उम्मीद रखकर उसको अंजाम देना, और जिस काम से उसने रोका है उसके अजाब के खौफ से उसे तर्क कर देना। आप नमाज अदा करके अभी अभी आए हैं, क्या आपने सोचा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इस पर कितना अजर देंगे? आप दुनिया में जो भी काम करते हैं आप उस पर नफे की उम्मीद रखते हैं किसी न किसी फॉर्म में। इंसान मफाद परस्त है बुनियादी तौर पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी नेचर के मुताबिक उसको तकवा इख्तियार करने की तलकीन की है कि यूं ही बगैर किसी सोच के आदतन ना अमाल अंजाम दिया करो। अपनी आदत को इबादत बनाइए, नियत करके, नियत को खालिस करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर पाने की उम्मीद के साथ जब नेक काम अंजाम देंगे तो ये तकवा होगा इंशाअल्लाह। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हो, तो ये डरने का हक कैसे अदा हो सकता है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा गया तो उन्होंने तीन नुकाते एजेंडा दिया। कैसा पैकेज है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाए, उसको भुलाया ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। बस जिंदगी में जिक्र, शुक्र और अल्लाह की इताअत, 3 चीजों को शामिल कर लीजिए। इसलिए कि मौत का वक्त मुकर्रर है, हम नहीं जानते कि मौत किस वक्त आ जाए। किसी भी लम्हे अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। क्या मालूम कौन सा लम्हा मौत का लम्हा हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीन की सरबुलंदी के लिए और हमें दीन पर कायम रहने के लिए हुक्म दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत को याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया, यानी आपस की खाना जंगी से। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोलकर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है जिसे आसमान से जमीन की तरफ लटका दिया गया। जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गहरा ताल्लुक कायम करना चाहता है उसे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए। उसको चाहिए इस कुरान को थामे। ये कुरान अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में है और दूसरा सिरा रब्बुल इज्जत के हाथ में है। कुरान मजीद ही है जो बाहमी इख्तिलाफात को दूर कर सकता है। जब लोग कुरान हकीम को छोड़कर, रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़कर राय पे चलना चाहते हैं तो इख्तिलाफात वाक़ई हो जाते हैं। दुनिया में
नेकी कैसे कायम रह सकती है, अमन कैसे कायम रह सकता है, दुनिया के लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए रह सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरती भलाई का तरीका कार बताया है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और लाजिम है कि तुम में से एक जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दें और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इस्लामी इज्तिमाइयत का कयाम और खास अफराद के काम है। खास अफराद क्या करेंगे? सोसाइटी में दो तरह के अफराद होते हैं, एक खास तबका है और एक आम तबका है। दुनिया में खास तबका वो होता है जिसके पास माल हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक खास तबका वो है जिसके पास सालेह आमाल हो। सालेह आमाल करने वाले भलाई की तरफ बुलाएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। और आम अफराद का क्या काम है? भलाई की तरफ बुलाने वालों की दावत को कबूल करेंगे, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में उनका साथ देंगे। भलाई की तरफ बुलाने वाले खास अफराद की बात सुनेंगे और इताअत करेंगे। और यहाँ जो बात है कि नेकी की तरफ, भलाई की तरफ बुलाएं, अलखैर से मुराद इस्लाम है, और हर वो चीज है जो दुनिया और आखिरत में नफा दे। इनमें ईमान और अमले सालेह शामिल हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फलाह, सक्सेस, नजात, कामयाबी के लिए 3 कामों को जरूरी करार दिया। दावत इलल खैर, यानी नेकी की दावत देना। जरूर सोचिएगा, आखिर हमें किसने रोक रखा है भलाई की तरफ बुलाने से, भलाई की दावत देने से। दूसरा काम है अमर बिल मारूफ, यानी नेकी का हुक्म देना, और तीसरा काम है नही अनिल मुनकर, यानी बुराई से रोकना। सईदा हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी का हुक्म दो और जरूर बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब भेज दे, फिर तुम उससे दुआएं करोगे लेकिन वो कबूल नहीं की जाएंगी। और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अलग अलग हो गए और अपने पास वाज़े अहकामात आने के बाद भी इख्तिलाफ किया, और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। यहूदियों और ईसाइयों के माबैन तारीखी एतबार से बाहमी इख्तिलाफात हैं, जिनकी वजह लाइल्मी नहीं थी बल्कि दुनियावी मफादात और नफसानी अगराज थी। सईद अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद 71 फिरकों में बट गए, ईसाई 72 फिरकों में बट गए, और मुसलमान 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। आगे तस्करा है कयामत के दिन का, जिस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ चेहरे रोशन होंगे। तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, तो अब अजाब को चखो इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। और जिनके चेहरे सफेद होंगे सो अल्लाह ताला की रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। कयामत के दिन 2 तरह के लोग, 2 तरह के चेहरे, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक वो जो अपने अमाल की वजह से इस मकाम तक पहुंचे होंगे, और सफेद चेहरे उनके होंगे जिनके रोशन अमाल होंगे, नेक अमाल होंगे। सफेद रोशन चेहरे वाले सुन्नत पर अमल जारी करें, फिरका बंदी से बचें, अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखें, मोमिनों से उल्फत रखें, हिदायत का रास्ता इख्तियार करें, भलाइयों की तरफ बुलाएं, नेकी का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, कामयाबी के लिए कोशिश करें। जहां तक डोंट्स का ताल्लुक है, जिन कामों से रोका गया, फिरका परस्ती में मुब्तला होना, जैसे हमारे यहाँ उसको मुसलमान ही तस्लीम नहीं किया जाता जो किसी फिरके से ताल्लुक ना रखता हो। यही हाल ईसाइयों का था, यही हाल यहूदियों का था। बाहमी इख्तिलाफ करना ये ऐसा काम है जिससे रोका गया, और ईमान लाने के बाद कुफ्र का रवैया इख्तियार करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, ये गौर फिक्र करना है कि इस्लाम एक निजाम जमात चाहता है, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का एक फोरम पर इकट्ठा होना। इसके लिए हम क्या करें? सोचिएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर रास्ते खोल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 3 है जिसमें उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियां हैं, और इस रुकू में 2 मेन बातें हैं जिनकी डिस्कशन है। नंबर 1 उम्मत मुस्लिमा
और नंबर 2 अहले किताब। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो जरूर उनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ मोमिन हैं और अक्सर नाफरमान हैं। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अल्लाह सुब्हान व तआला ने यह वाज़ेह फरमाया है, बेहतरीन उम्मत है। इसका मकसद इंसानों की हिदायत और इस्लाह है, और ये उम्मत नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान रखते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने वाज़ेह किया है कि ये उम्मत मुस्लिमा तब बेहतरीन होगी जब लोगों को नेकी का हुक्म देगी, जब लोगों को बुराई से रोकेगी। और अगर ये काम करना छोड़ देगी ये उम्मत, तो उम्मत अपने मकाम से गिर जाएगी। इनका हाल भी अहले किताब की तरह होगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इससे बचा ले। फिर फरमाया, वो तुम्हें मामूली तकलीफ के सिवा हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर वो तुमसे जंग करेंगे तो तुमसे पीछे फेर जाएंगे, फिर वो नहीं मदद किए जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा को तसल्ली है कि अहले किताब तुम्हें सिर्फ सता सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, ये जहां कहीं भी पाए जाएं जिल्लत इन पर मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो और वह अल्लाह ताला के गजब के साथ लौटे, और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला की आयात से कुफ्र करते थे और वो पैगंबरों को किसी हक के बगैर कत्ल करते थे। ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजर जाते थे। सब यहूदी बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक जमात कयाम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयात तिलावत करते हैं और वो सजदे करते हैं। वो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और खैर के कामों में भाग दौड़ करते हैं, और यही लोग सालिहीन में से हैं। वयुसरियूना फिल खैरात, खैर के कामों में भाग दौड़ करना ये इंसानियत में सबसे ज्यादा मोहतरम लोगों का काम है। सोचना है हमें भी, हमारी जिंदगी किन कामों में गुजरती है? भलाई के कामों में भाग दौड़ करते हैं या अपनी ख्वाहिशात और दिल पसंद कामों में भाग दौड़ करते हैं? एक लम्हे के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि भाग दौड़ किन कामों के लिए होती है। सुबह सवेरे देखिए गाड़ियां भागना शुरू करती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, कितनी भाग दौड़ है दुनिया के लिए। और शाम को वापसी गाड़ियां घरों की तरफ भागना शुरू हो जाती हैं। सारी भाग दौड़ किसके लिए है? इस जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी ने मौत के घाट उतर जाना है। भाग दौड़ जरूरी है, लेकिन क्या सारी भाग दौड़ इस छोटी सी उम्र के लिए होगी? क्या कोई भाग दौड़ अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं होगी? दुनिया के रिस्क के लिए भाग दौड़ करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है? अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हमें रिस्क के बारे में हक को समझने की तौफीक अता फरमा दे। रिस्क कमाना मर्द के फराइज में से, उसने रिस्क कमाना है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में बहुत से काम करने वाले हैं। आज इरादा कर लें कितना वक्त लगाना है, कितना माल लगाना है, कितनी सलाहियत लगानी है अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए। आप इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस रास्ते पे चलने की तौफीक देंगे जो रास्ता आपको जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भलाई का कदरदान है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और भलाई में से जो भी वो करेंगे उसकी नाकदरी हरगिज नहीं की जाएगी, और अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है। भलाई के काम करते वक्त शैतान दिलों में वसवसा डालता है। देखो 900 चूहे चखा के बिल्ली हज को चली, तुमसे तो फुला 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 गलतियां होती हैं, तुम्हारी नेकी भला कब कबूल होगी? कितने लोग हैं जो कहते हैं दुआ कैसे मांगे, इतने हम गुनाहगार हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दें। लोग दुआ तक मांगने को तैयार नहीं होते, ऐसे शयातीन के वसवसों में घिर जाते हैं।
शैतान कहता है ऐसे बेमकसद काम करने का क्या फायदा। अल्लाह ताला ने इंसान की जहन साजी की है, जिसके लिए करोगे ना वो कदरदान है, वो उसका पूरा पूरा अजर देगा। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके हरगिज कुछ काम ना आएंगे, और यही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इस आयत में काफिर के सदका और खैरात और रिफाही कामों का आखिरत में बेवकत होना जाहिर किया गया है। इंसान का खर्च किया हुआ माल तभी उसके काम आ सकता है जब अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखे, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसी तरीके से खर्च करे, यानी भलाई के कामों में, रिफाही कामों में, अहयाए दीन के कामों में। लोगों के ज़हन में अपने अंजाम की बात नहीं आती, बल्कि ये आती है ईसाइयों ने इतने नेकी के काम किए, यहूदियों ने इस कदर चैरिटी के काम किए, क्या इनका कोई अजर नहीं मिलेगा? भाई उन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला से अजर पाने की तवक्को है। उन्होंने जिस मकसद के लिए किया अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतर जानता है। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नवेड़ तू पहले अपनी तरफ देखें कि हम कितने रिफाही काम करते हैं, हम कितने ऐसे काम करते हैं जो दीन की सरबुलंदी के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे फराइज हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें पॉजिटिवली सोचने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिहिन फीहा सिर्रुन। उन लोगों की मिसाल जो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं हवा की तरह है जिसमें पाला है, जो किसी ऐसी कौम की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, फिर वो उन्हें हलाक कर डाले। और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। सईद अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन पर किसी भी नेकी के सिलसिले में कोई जुल्म नहीं करेगा। दुनिया में भी उसे नेकी का बदला दिया जाएगा और आखिरत में भी उसे उस नेकी का बदला दिया जाएगा। रहा काफिर तो नेकियां उसने अगर अल्लाह ताला के लिए की होंगी तो उसका बदला दुनिया में उसे दे दिया जाएगा, यानी उसकी नेकनामी होगी। उसकी जिंदगी में जो उसने खैर और भलाई के काम किए होंगे लोग उसका अच्छा तज़किरा कर लेंगे, यहां तक कि जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, यानी मुसलमानों के सिवा किसी से दोस्ती ना करना। वो तुम्हें किसी तरह बर्बाद करने में कोई कमी नहीं करते। वो पसंद करते हैं ऐसी चीज को जो तुम्हें मुसीबत में डाल दे। उनका बुग़्ज़ उनके मुंहों से जाहिर हो चुका और जो उनके सीने छुपाते हैं यकीनन ज्यादा बड़ा है। यकीनन हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं अगर तुम समझते हो। मुसलमानों को हुक्म दिया गया अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को राजदार न बनाओ। मुराद ये है कि मुसलमानों के सिवा दूसरों से दोस्ती ना करो। यहां लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बितानत। बिताना कहते हैं दिली दोस्त और राजदार को। इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों को कलीदी मनासिब पर फाइज करना जायज नहीं है। सईद उमर बिन इब्ने खत्ताब से रिवायत है, उनके बारे में कहा गया कि हीरा का एक शख्स बहुत अच्छा लिखने वाला है, बहुत अच्छे हाफजे वाला है, आप उसे अपना मुहर्रिर, अपना मुंशी बना लें। आपने फरमाया इसका मतलब ये होगा कि मैं गैर मोमिन को अपना राजदार बना लूं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे मना फरमाया। इसका सबब बताया गया कि क्यों रोका गया। देखो तुम लोग ही उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम उन सारी किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुम से वो मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। आप कह दें अपने गुस्से से तुम मर जाओ। बिलाशुबा अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला दिलों के राज से वाकिफ है। जिन लोगों ने इस्लाम को और अहले इस्लाम को अजियतें पहुंचाई, जिन्होंने साजिशें की, अल्लाह ताला उनके मंसूबों को खाक में मिलाने वाले हैं। उनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। उनकी तमन्नाओं के बरक्स उनकी नजरों के सामने मुसलमान दुनिया में तरक्की करेंगे और आखिरत में नेमतों वाली जन्नत को पाएंगे।
खुद दुनिया में भी रुस्वा होंगे और आखिरत में भी जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तुम्हें भलाई पहुंचती है तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो इस पर खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यकीनन जो वो अमल करते हैं अल्लाह ताला उसका इहाता करने वाला है। और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर हर हाल में खुद को हक का पाबंद रखो, सब्र करो, अल्लाह से डरो, फैसला कुन ताकत अल्लाह ताला को समझो, उनकी खुफिया तदबीरें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में हकायक को खोला है कि पहली बात तो ये कही कि अगर ईमान ले आते तो उनके हक में बहुत अच्छा होता, लेकिन ये वाज़ेह कर दिया रब्बुल इज्जत में इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं और इनमें से कुछ लोग ईमानदार हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुकाबला होगा, पीठ फेर जाएंगे। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं। मोहताजी, मगलूबियत और जिल्लत इन पर मुसल्लत कर दी गई। इस रुकू में जिन चीजों का हुक्म दिया गया वो 11 है। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, सजदे करना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के अहद पर कायम रहना, रातों को अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करना, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, नेक कामों में भाग दौड़ करना, सॉलिहियत, अल्लाह ताला से डरना और सब्र करना। और जिन कामों से रोका गया उनमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, ईजा देना, मुकाबले में पीठ दिखाना, अल्लाह ताला की हुदूद से निकल जाना, अल्लाह ताला के अहकामात से इनकार करना, अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करना, अपनी जान पर जुल्म करना, गैरों को राजदार बनाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कमी न करना, निफाक, दूसरों की तकलीफ में खुश होना, दूसरों की अच्छी हालत से तकलीफ महसूस करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। इज्तिमाई काम है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। जरूर किसी ऐसे फोरम से जुड़ जाइए जो नेकी का हुक्म देते हों और बुराई से रोकते हों, और दीन को जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करना, इकामत दीन के लिए कोशिश करना, ये वो काम है जो हमने करने हैं। बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस्लाम को तभी कबूल करेंगे जब हम इस्लाम के तकाजों को पूरा करेंगे। आज इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह पहले नंबर पर खास लोगों में से होना है जो खुद आगे बढ़ के नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, भलाई की तरफ बुलाते हैं। और अगर जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए डेडिकेट नहीं कर सकते, कुल्ली तौर पर डेडिकेट नहीं कर सकते, तो इतना जरूर कर सकते हैं कि उन लोगों का साथ दे दें, उनसे ताउन कर लें। अब हालात पड़ते हैं जंगों के, कितने ही लोग हैं जो कहते हैं हम कौन सी जंगें हैं जो लड़ सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब तो सबके लिए। देखिए, आज की वॉर मीडिया वॉर है। आज वो दौर नहीं है जहां पे आमने सामने उसी तरह से जंगें हों जैसे रसूलुल्लाह के अहद में जंगें होती थी, और वो जंगें हम पर लाजिम भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दुश्मन ने आप में से हर एक को सिखा दिया है आप किस तरह से किस पैगाम को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा काम प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम है। प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम के लिए, इस्लाम के पैगाम को प्रमोट करने के लिए अपना हिस्सा डालिए। आपके हाथों में मोबाइल होते हैं, आपका जहन उसकी जानिब लगा रहता है, कितने सोशल मीडियम से आपका ताल्लुक है, आप स्विच ओवर कर लें। आप जो कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, उसके बारे में तय कर लें। नेकी के लिए ये काम करना है, उम्मत की भलाई के लिए ये काम करना है। इख्तिलाफी बातें नहीं करनी, बगैर तहकीक के बातें नहीं करनी, मुस्तनद बात, सच्ची बात और इस्लाम की तरक्की की बात लोगों तक पहुंचानी है, ताकि लोगों के दिल उसकी तरफ माइल हों और ताकि सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा बन जाए।
اور تاکہ سب لوگ کامیاب ہو جائیں۔ رکوع نمبر 4 ہے جس میں غزوہ احد کے حالات ہیں، اور مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے: غزوہ احد کا آغاز اور غزوہ احد کے واقعات۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، ریلی میں اپنے تصور کی آنکھ سے جب دیکھتی ہوں تو اپنے آپ کو احد پہاڑ کے پاس پاتی ہوں۔ اس دفعہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امام حرم کے استاد صاحب سے غزوہ احد کے واقعات کو احد پہاڑ کے پاس سننے کا موقع دیا۔ رات بھیگ رہی تھی، ہمارے رونگٹے کھڑے تھے، اور وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان سارے واقعات کو بتا رہے تھے۔ کس وقت کیا ہوا لگتا تھا سب کچھ آنکھوں کے سامنے مجسم ہو گیا۔ اب بھی دیکھیے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کیسے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی پہ مامور کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدہ برا بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ نے جنگ احد کے موقع پر 50 آدمیوں کا افسر مقرر کیا سیس عبداللہ ابن جبیر کو۔ آپ نے انہیں تاکید کی تھی، اگر تم یہ دیکھ لو پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دی ہے، انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ پھر غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تیر انداز کیا۔ اس موقع پر جو افراد جنگ کا نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی 3 شرائط بیان کی ہیں: صبر، تقوی اور مشرکین کا فوری جوش و جذبے کے ساتھ آنا۔ یاد رکھیے گا، مدد اور فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں، کیا یہ تعصب ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کچھ مقاصد ہیں جن کے تحت مدد کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں اس بارے میں فرمایا، لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس پلٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کو زخم آئے۔ آپ نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہدایت آپ کا اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ احد کے واقعات ہیں جن میں خاص بات ہے، کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ فیصلہ کر دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور اس رکوع میں جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ 5 ہیں: بھروسہ کرنا اپنے رب پر، اللہ ہی کا خوف رکھنا، شکر گزار ہونا، صبر کرنا اور توبہ کرنا۔ 2 کاموں سے روکا گیا، پست ہمتی اور ظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہمتوں کو پست ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں:
ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور رکوع نمبر 5 میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: احد کی شکست کے اسباب، کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات، اور آزمائش کیوں آتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود سے متعلق آیتوں میں 3 بار تقوی کا لفظ دہرایا گیا، گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو مومن کو سود نہ لینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے مومن حق کو اپناتا ہے اور باطل کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کے لیے جلدی کر لو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ پھر فرمایا، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان یعنی رد عمل کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جب انسان کے مزاج کے خلاف کام ہوتے ہیں، تو غصہ آنا بڑا نیچرل سی بات ہے، لیکن کیا اس غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ غصہ آئے تو پھر کیا کریں؟ سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ وہ کہتے، میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اور ان کی جزا کا تذکرہ ہے۔ خصوصیات کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی آگ سے بچنے والے ہیں، مال کی حرص پر قابو پانے والے ہیں، یعنی سود نہیں لیتے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اپنے غصے کو پینے والے، خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے۔ ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔
फोश काम या गुनाह करने की सूरत में फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं। ये खुसूसियात है, 11 ऐसी खुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर जन्नत का फैसला होता है कि ऐसे ही लोग जन्नत में जाने वाले, जिसका जी चाहता हो, जिसकी जिंदगी का फोकस जन्नत हो, जिसने अपने इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी पर बिलीव किया हो, जिसने ये समझ लिया हो कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है और मुझे जिंदगी के बाद अगली जिंदगी में जाना है, उसको चाहिए कि इन अमाल पर गौर व फिक्र करें और इन अमाल को अपनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, इन अमाल को अंजाम देने के लिए इल्म सीखे और इन पर अमल करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जज़ा की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको तौफीक अता फरमाए। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले भी बहुत से तरीके गुजर चुके हैं, सो तुम जमीन में चलकर देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तक़ीन। लोगों के लिए ये बयान है और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। और ना तुम हिम्मत हारो और ना गम करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उन्हें भी यकीनन ऐसी चोट लग चुकी है और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं, और ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बाज को शहीद बना ले। और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ग़ज़वा उहद की शिकस्त में कुछ हिकमतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की। पहली चीज है वलियुमहिस्सल्लाहु लज़ीना आमनू, और ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को खालिस कर ले जो ईमान लाए, वयमहक़ल काफिरीन, और काफिरों को मिटा दे। और बहुत ही अहम आयत है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। या तुमने गुमान कर लिया कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक उनको नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, ताकि वो जान ले सब्र करने वालों को। जन्नत में दाखिला ऐसी चीज नहीं है जो महज हमारे ख्याल, हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना की बुनियाद पर हो जाए। इसके लिए अमल करना शर्त है और अल्लाह ताला की राह में आजमाइश जरूर आती है, टेस्ट जरूर किया जाता है। जिसके ईमान का टेस्ट ना हो उसको जान लेना चाहिए कि अभी मेरी जिंदगी में वो मकाम ही नहीं आया कि जहां मेरे ईमान को तस्लीम किया गया हो। तो ये आजमाइश इंसान के घर में भी हो सकती है, ये आजमाइश बच्चों में, उसकी सेहत में और मैदान जंग में भी। तो जन्नत में दाखिले की कम अज कम शराइत हैं, जिहाद, स्ट्रगल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में, और सब्र। और जन्नत तलवारों के साए तले है। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो और अल्लाह ताला से आफियत तलब करो। जब दुश्मन से लड़ना पड़े फिर साबित कदम रहो और ये बात जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। आजमाइश क्यों आती है? जमाने के नशेबो फराज हैं लोगों के इंतखाब के लिए, छांटने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों की तरबियत करना चाहते हैं और जन्नत में जाने वालों की, उनकी छांटी करना, उनका इंतखाब करना जरूरी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं मुजाहिद कौन है और साबिर कौन। और बिलाशुबा यकीनन तुम तो मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि तुम मिलो उससे, तो यकीनन तुमने उसे इस हाल में देख लिया कि तुम आंखों से देख रहे थे। यहां पर रुकू नंबर 5 का इख्तिताम होता है और इस रुकू में करने वाले काम है अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, रब की बख्शिश की तरफ दौड़ना, जन्नत की तरफ दौड़ना, खुशहाली और तंगदस्ती में माल खर्च करना, दूसरों के कसूर माफ करना, गुस्से को पीना, नेकी करना, गलती पर अल्लाह ताला को याद करना, अपने कसूरों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी चाहना, दानिस्ता गुनाहों पर इसरार करना, नादानिस्ता गुनाहों पर भी इसरार ना करना, हिम्मत ना हारना, गम ना करना, हक का गवाह बनना,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور صبر کرنا. جن کاموں سے روکا گیا، سود کھانا، فوش کام کرنا، گناہ کرنا، ہمت ہارنا، اپنے اوپر ظلم کرنا اور غم کرنا. ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ساری امت نے جہاد کرنا ہے؟ مرد جہاد کریں گے تو کیا خواتین بھی جہاد کریں گی؟ جہاد کا مطلب ہے پوری کوشش کرنا، اپنے قلم سے، مال سے، اپنی جان سے. اور آج کے دور میں میڈیا وار ہے، کم از کم میڈیا وار کے مجاہد ضرور بن جائیے، اس میں اپنا شیئر ضرور ڈالیے. بہت ایزی. اسی وقت میں جو وقت آپ کا ہے، کہیں بھی کسی مقام پر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا شیئر ضرور ڈالیے. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. اور رکوع نمبر 6 میں ہے دنیا یا آخرت. اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، موت کی بات ہے، ثواب کی اور ایمان اور کفر کی کشمکش کی بات ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئمت او قتل انقلبتم على اعقابكم. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے بتایا اللہ کے رسول ہیں، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں، تم ان کے ساتھ ہو. اگر وہ جہان سے چلے جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اسلامی سے پھر جاؤ گے؟ یعنی جس راستے پر تمہیں رسول چلا گئے اس راستے پر ہمیشہ قائم رہنا. اور موت کے بارے میں بتایا موت کا وقت مقرر ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے. مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. غزوہ احد میں ہونے والے نقصان پر مسلمانوں کو تسلی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَوْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایمان اور کفر کی کشمکش میں کچھ لوگ نبیوں کا ساتھ دیتے رہے اور کچھ انبیاء کے دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے. تو جو اللہ والے تھے وہ باطل کے آگے جھکے نہیں. اللہ کی راہ میں مصیبتیں آئی تو ان کا دل ٹوٹا نہیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس آیت میں دعائیں ہیں ہماری غلطیاں اور ہمارے قصور معاف کر دیں، اور جب بھی کوئی دعا ہو تو ضرور آمین کہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر اس کو ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیں. اپنے کام کے سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ تو ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. اس رکوع میں کرنے والے کام ہے شکر گزار بننا، آخرت کے ثواب کے لیے کام کرنا، انبیاء کا ساتھ دینا،
दिल शिकस्ता ना होना, हिम्मत ना हारना, कमजोरी दिखाना, सब्र करना, हिम्मत ना हारना, कमजोरी ना दिखाना, सब्र करना, साबित कदमी की दुआ करना, एहसान करना, काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद की दुआएं करना। इस रुकू में जो डोंट्स है, दीन से उल्टे पांव फिर जाना, दुनिया में बदला हासिल करने के लिए काम करना, और कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, अपने जिंदगी को आखिरत के अजर के इरादे से गुजारने के लिए हर काम के लिए जहन में अल्लाह सुभान व ताला की रजा, उसकी खुशी को रखना है। वक्त, सलाहियतें, माल लगाते हुए आखिरत को तरजीह देनी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास अल्लाह सुभान व ताला के लिए वक्त है? आप पढ़ते हैं, आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए माल लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप घर का काम करते हैं, या आप अपने बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, जो कोई जिस तरह के काम में है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी जिंदगी के कितने घंटे हैं जो इस मकसद के लिए वक्त लगाते हैं? क्या आपके पास अल्लाह सुब्हान व तआला के काम के लिए भी कोई वक्त है? क्या कुरान पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमारे नबी ने हमारे सुपुर्द की है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे पहुंचा दो अगरचे एक आयत बात कीजिएगा। होनी है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर पाने की तवक्को भैया। नंबर 2, मुनाफिकीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों की इताअत करोगे जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल लौटा देंगे, फिर तुम खसारा उठाने वाले होकर पलटोगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मालिक है, और वो सब मदद करने वालों से बेहतरीन है। जल्दी हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रोब डाल देंगे, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया जिसकी उसने कोई दलील भी नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है, और जालिमों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़